आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 8th क्वेश्चन। दिस इज ऋतुराज दिस साइड ऑफ योर स्क्रीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। So hope you are having a good day. So as you may have read about from the channel description or the thumbnail that we are going to study logarithm, and this is a one short basic lecture. And yeah, we would of course I don't know if I have mentioned that or not in the banner, but this would be a sample question plus previous year question lecture. I have used my own notes. This is my first time making this video or something like that, so the lecture or the notes might be a little bit messy, but yeah, we will probably improve that in the coming videos. And yeah, I will be posting more of this like every chapter of the mathematics for the engineering and all the competitive exams which are there, and 2 videos every week if I am able to. I will try my best to do that. And so let's start the lecture. And first I want to tell you, guys, this is not a conceptual lecture. This is not a conceptual lecture. This is a perfect revision lecture which you can watch for revision purposes before your exam, one day before your exam. And yeah, all the questions that I have included in this lecture are all the previous year question lectures and sample question lectures from different types of competitive exams that happen around India. Yeah, and so let's begin. Let's set the ball rolling. And here, so we are going to start with logarithm. So the table of contents. So basically we will first go through the logic, log basic, then properties and formula with example, p by q, sample questions, then homework and dpp, and basics of log. Okay, so we are going to start from basic of log, our first topic. So yeah, if you can see there, see here, this is log c by a. So what is this c by a? Okay, so look, c, what do we say? C is the argument of a log and a is the base of a log. Okay, if we say that c equals to a by b, if you see there with my cursor, then log c by a equals to b and c equals to a by b. This is all basic. If you have, if you are watching this video, I might assume that you have already done that, but I'm just repeating for your concept or for your revision. You can see that here in my screen all the different types of question. This is a basic question of log x by 2. There is a base 2 and equals to 3, so x equals to 2 and the power 3. सो जो भी इस तरफ हम लोग का रहेगा राइट साइड में, वो हम लोग को ऊपर पावर में चल जाएगा, और जो भी हम लोग इधर रहेगा वो बेस में आ जाएगा. ओके, सो x इक्वल्स टू 8 विल बी आवर आंसर. And the another question, example number 2, log x by 4. So 4 is in the base and x is the argument of the log. Okay, equals to 2, and here's the solution. Log x by 4 equals to 2. X equals to 4 to the power 2. Okay, so जो भी हम लोग इस तरफ राइट में हम लोग का बोल सकते हैं कि या जो भी हम लोग का यहाँ पर हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है लॉग का, उसको हम लोग यहाँ पर 4 को इधर भेज देंगे. 4 यहाँ पर हम लोग का बेस बन जाएगा और पावर में हम लोग का 2 चल जाएगा. सो 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 16. ओके, ये 2-3 क्वेश्चन था जो कि हम थोड़ा फास्ट में तुम लोग को करवाए हैं. तो इसके लिए अब हम जो आगे क्वेश्चन देंगे उसमें हम 30 सेकेंड्स टू 25 सेकेंड्स का टाइम देंगे कि तुम लोग खुद इसको सॉल्व करो. ओके, so this is the example number 3. We have to represent 2 to the power 3 equals to 8 in log. Okay, so I will wait for 20 seconds for you guys to solve, then we will move on to the solution. Yeah, so I'm going to the solution. So here's the solution. This is a simple solution. If 2 to the power 3 equals to 8, then obvious सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हो 4 to the power 2 हो रहा था, तो यहाँ पर 2 to the power 3 equals to 8 है, तो 3 हम लोग का इस तरफ आ जाएगा, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू था वो पावर में चल जाता था, तो 3 हम लोग का वैल्यू में आ जाएगा और 8 हम लोग का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और बेस हम लोग का 2 हो जाएगा. ओके, then we are going to start our next topic, which is properties of logarithm.
So here are the properties of logarithm. So the first property is the addition property of logarithm. आप ये थोड़ा नोट्स को जो मैंने फोटो क्लिक किया है ये थोड़ा सा आपको मेसी लगेगा क्योंकि ये मेरे वाइट बोर्ड का लिखा हुआ है. सो नेक्स्ट टाइम मैं इसको अपने नोट्स का यहाँ पर पिक्चर ऐड करूंगा. सो इस टाइम आपको बस ये देखने मिलेगा. नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉब्ली से इंक्रीज कर दूंगा या इंप्रूव कर दूंगा. सो देखिए log टू द पावर m बाई एन है, mn है और नीचे a है. ओके सो इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे किस तरीके से, log टू द पावर m बाई a प्लस log n बाई a. ठीक है. सो यहाँ पे नीचे का एग्जांपल दिया हुआ है इसके सम का. आप यहाँ पे जब देखेंगे log टू द पावर 3 बाई 2 प्लस log टू द पावर x बाई 2 इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है. ठीक है. और जो ऊपर का आर्ग्यूमेंट है वो अलग अलग है. तो जिसका बेस सेम है उसको हम लोग एक साथ ले आएंगे और जो ऊपर के दो यहाँ पर हम लोग की आर्ग्यूमेंट थे उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 और x था तो 3x हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. अब वही सिंपल लॉग का जो हम लोग करते हैं वही करेंगे. सो लॉग को हटा देंगे, फिर 3x इक्वल्स टू 2 बाई 2 टू द पावर 4 आ जाएगा. सो 3x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 बाई 3. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे पावर के पावर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉग का पावर यहाँ पर लॉग का बेस यहाँ पे a है और उसका पावर m है. ओके और m का पावर n है. सो n हम लोग के यहाँ पे क्या होगा वो आगे आ जाएगा और log m बाई a है. मैं ये मुझे लगता है एक्चुअली आप ये पहले पढ़े होंगे किसी ना किसी चीज में. ये log में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है. ऐसे भी कहीं पे ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कहीं पे इस प्रॉपर्टी का यूज होता है सेम टू सेम. देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ये हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी होगा. सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 8. ठीक है. अब 8 हम लोग यहाँ पे पावर में दिया हुआ है. ठीक है. और 8 ऑब्वियस सी बात है कि 2 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है. तो हम लोग यहाँ पर 8 को 2 टू द पावर 3 के वैल्यू में लिख रहे हैं और फिर 3 को आगे भेज दे रहे हैं और log 2 बाई 2 को लिख ले रहे हैं. और हमें जैसे पता है कि log 2 बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. सो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 3. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि है डिवीजन का. ओके सो थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे डिवीजन का है, इसमें हम लोग का बेस यहाँ पर a है और ऊपर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेस हम लोग का a है और यहाँ पर जो दो पावर हम लोग के यहाँ पे हैं या हम लोग बोल सकते हैं आर्गुमेंट, वो हम लोग के अलग अलग हैं m और n. ठीक है. तो log 6 बाई 3 माइनस यहाँ पर एक एग्जांपल है log 2 बाई 3. ठीक है. दोनों का यहाँ पर हम लोग का बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट अलग अलग है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट अलग अलग है, पर यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर रहे थे, पर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो log 6 बाई 2 और नीचे हम लोग का सेम बेस रहेगा. तो हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा log 3 बाई 3 इक्वल्स टू 1, क्योंकि सेम वैल्यू का सेम होता है 1. ठीक है. अब ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है. जस्ट वेट अ मिनट. या ये हम लोग को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो ये फर्स्ट वाला हम लोग का log b बाई ये है. ये प्रॉब्लम मुझे आपको पहले देना चाहिए था, बट मैंने इसी तरीके से स्लाइड्स को अरेंज किया था. सो यहाँ पे आप जो फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं log b बाई b इक्वल्स टू 1, ये ठीक हमने थोड़ा देर पहले इस वाले प्रॉपर्टी में किया था. इस वाले प्रॉपर्टी में किया था. देखिए यहाँ पे log 3 बाई 3 था. ठीक है. तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों का यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 1 आया. ठीक है. सेम यहाँ पे फिफ्थ वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी यहाँ पे हमने सेम किया है log b बाई b इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब देखिए सिक्स्थ नंबर जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसमें भी वही दिखाया गया है. ये इसका एक्चुअली एग्जांपल है. हम लोग 10 बाई 10 ले रहे हैं. ठीक है. और हाँ एक और चीज आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, जब भी यहाँ पे log 10 लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो बेस रहेगा उसमें पहले से 10 लगा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना होगा log 10 का, हमेशा 1 होगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आप देखिए log b बाई a. ठीक है. तो log b बाई a को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं log b बाई log a के फॉर्म में. ठीक है. फिर ये हम लोग का 7 प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाता है. 7 प्रॉपर्टी हम लोग का यहाँ पे है log में हम लोग का जो आर्गुमेंट है वो 1 है, बेस हम लोग का a है और उसका वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है. तो हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल है एक कि log 7 हम लोग का यहाँ पर आर्गुमेंट में है और उसका पावर में 0 है. ठीक है. और बेस में 7 है, तो 0 हम लोग के यहाँ पर उठ के आगे आ जाएगा. ठीक है. तो 0 log 7 बाई 7. 7 हम लोग के यहाँ पे आर्गुमेंट है और 7 हम लोग के यहाँ पे बेस है. अब 0 log दिया हुआ है और log 7 बाई 7 का वैल्यू आपको ऑफ कोर्स पता होगा क्या होता है, 1 होता है. हमने अभी यहाँ पे किया है log b बाई b का वैल्यू 1 होता है. तो 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0. ओके. ठीक है. अब हम मूव करते हैं इसके आगे. ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में आ गए हैं. ये हम लोग के
प्योर PYQs रहेंगे, क्योंकि मैंने इसे खुद सेलेक्ट किया है अपने हाथ से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ PYQ पेपर ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स। कुछ हमने बोल सकते हो कॉलेज के एग्जाम से लिया है, कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम से, और कुछ क्वेश्चन जो है ये हम लोग के PYQs से हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है, सिंप्लीफाई log a टू द पावर, या बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट a उसके पावर में 3। ठीक है, सो आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको 20 सेकेंड्स बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन दिखाने से पहले मैं खुद इसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा इसका क्या होगा। तो देखिए, log a टू द पावर 3 है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, पर इसका फॉर्मल वे क्या होगा कि log का बेस में a है और उसके आर्ग्यूमेंट में a है और उसके पावर में 3 है। ठीक है, सो देखिए, अब थोड़ी देर पहले हमने ये प्रॉपर्टी किया था, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, कि जो भी आर्ग्यूमेंट के पावर में रहेगा वो फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के पावर में, तो 3 उठ के फ्रंट में आ जाएगा, तो 3 log आर्ग्यूमेंट में a, बेस में a। ठीक है, और a भी आर्ग्यूमेंट में और बेस में भी a है, तो ऑब्वियस सी बात है कि log का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 3 हम लोग का यहाँ पर वैल्यू था जो हम लोग का उठ के आगे आया था। सो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप इसे स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का भी सॉल्यूशन है, ये जो मैंने खुद बनाया है, ये क्योंकि कंप्लीट नहीं है किसी तरीके से, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि अगर आपको पसंद आता आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इफ log 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0.3010। तो देखिए 0.3010। सो एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि लॉग 2 का पावर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट लॉग 2 भी बोलेंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर हम लॉग 2 बोल रहे हैं तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि उसके बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो उसका आपको क्या वैल्यू दिया है, 0.3010। ये सबको पता होता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि एक कीवर्ड या आइडेंटिफायर है जो कि हमें पहले से लॉग में पढ़ाया जाता है। अगर आप 9th या 8th में इसे पढ़े होंगे तो ये पहले से आपको पढ़ाया जाता है कि लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। इसका कैलकुलेशन भी होता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ये गूगल में आपको इसका सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला जा रहा है कि log 10 जो कि हम लोग का यहाँ पर बेस है और आर्ग्यूमेंट है 200। ठीक है, तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, तो आप स्टॉप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो देखिए log 10 टू द पावर 200। ठीक है, log 10 है और उसके पावर में 200 है, तो क्या हम लोग 200 को ब्रेक कर सकते हैं क्या सिंपलर फॉर्म में? कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो 200 को हम लोग 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं तो इसको फिर फर्दर हम लोग एडिशनल प्रॉपर्टी लगा के और ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ इधर देखिए आप, जैसे देखिए यहाँ पे 2 इंटू 100 में इन लोग ने तोड़ा है और इसे बाद में 2 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर बोल दिया है। ठीक है, सो log 10 टू द पावर 200 इक्वल्स टू log 10 टू द आर्ग्यूमेंट 2 प्लस log 10 टू द आर्ग्यूमेंट 10 और उसके पावर में 2। तो ये फॉर्मूला तो हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाए हैं उसके, तो log 2 हम लोग के यहाँ पर आगे आ जाएगा और log 10/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो 2 हम लोग यहाँ पर वैल्यू बस बचेगा और log 10 टू द पावर 2 का हम लोग का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 0.3010। सो 3010 प्लस 2 हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 2.3010। ठीक है,
तो ये इसका ये था। अब मैं इसको हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा हैंड रिटन नोट्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 × 10 के पावर में से तोड़ा है, पावर नहीं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ा है, और फर्दर इसे ब्रेक कर दिया है। तो 10 to the 10, फिर 10 to the 10, दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और लॉग 2/10 का वैल्यू 0.3010 हो गया। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 2.3010। ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, इवेलुएट log 5 आर्ग्यूमेंट में 125। सो इसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, और बहुत जन ने पहले इसके कॉन्सेप्ट को पहचान लिया होगा। अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं आप वीडियो के साथ, या आप स्टॉप करके इसे सॉल्व करने का भी ट्राई कर सकते हैं। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखिए log 5 to the power 125। ठीक है, तो 5 को हम लोग यहाँ पे 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, हाँ 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और अगर हम लोग 2 को आगे भेज देते हैं तो हम लोग का log 5/5 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा, 125 = 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व log x = 2। और देखिए जैसे मैंने बताया था, अगर बस log x या log 2 या log 3 कुछ भी ऐसा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बेस में क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो उसका बेस में हमेशा 10 होगा। ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल गए, आप कुछ और ले लिए या उसी को बेस समझ लिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो log x = 2 दिया हुआ है। ऐसे इस क्वेश्चन में तो मेंशन किया है कि बेस यहाँ पे 10 है, बट ऐसे करता नहीं है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हो तो, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया लॉग जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे log x = 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 10 का बेस मेंशन नहीं किया है कितने अच्छे तरीके से, और log यहाँ पे 10 हम लोग का बेस दिया है और x हम लोग का आर्ग्यूमेंट दिया है, इक्वल्स टू क्या है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो x = 10 हम लोग का यहाँ पे चल जाएगा इसके बेस में, और 2 ऊपर चल जाएगा पावर में, तो 10⁻², और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सम आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, इफ log a + log b = 3 फाइंड log ab। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए इसको, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप जो सोच रहे होंगे इसको कुछ सॉल्व करना है, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर आप एडिशनल प्रॉपर्टी याद करके रखे होंगे लॉग का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये रहा वो प्रॉपर्टी। देखिए log a + log b, ठीक है, इक्वल्स टू log ab इक्वल्स टू 3। तो इन्होंने में यहाँ पे तो कुछ उतना समझाया नहीं है, पर ये रहा मेरा सॉल्यूशन। तो देखिए लॉग आर्ग्यूमेंट में ए है, बेस में 10 है, और फिर इसके लॉग के आर्ग्यूमेंट में बी है और बेस में 10 है, दोनों का यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, तो 10 10 हम लोग का यहाँ पे 10 हम लोग का यहाँ पे बेस हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसलिए मिस आउट कर दिया 10, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियस सी बात है कि इनके हमेशा बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, ए बी। ठीक है, तो log ab = 3, यही सेम आंसर रहेगा इसका। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला प्रॉपर्टी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम 6 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई log बेस 2 to the power 8। ठीक है, आर्गुमेंट में 8 है, प्लस log 4 to the power 16। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है। ठीक है,
तो जो सॉल्व कर सकते हैं आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कीजिए, मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ूंगा। ये देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 2 और उसके पावर में क्या है, हम लोग बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट 8, ठीक है, इक्वल्स टू 3। सिंस देखिए ये इसको सॉल्व करके ये वैल्यू ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, रुक जाइए मैं इसको, हाँ आप मेरा वाला सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, log 2 टू द पावर 8, ठीक है, और 8 को मैंने उसके और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया है, 2 के पावर में 3 में लिया है। अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लग गया है, तो 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा और log 2/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए log 16/4, ठीक है, log 16/4 यहाँ पे भी है, इसको भी मैं कुछ इसी तरीके से तोड़ूंगा, पर यहाँ पर एक और एडिशनल प्रॉपर्टी लग रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। log 16 को तो मैं यहाँ पे 16 को तो मैं 2 to the power 4 के वैल्यू में तोड़ रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली बात है कि 4 आगे चल जाएगा, ठीक है, पर ये जो 2 है इसका क्या होगा, ठीक है, तो ये 2 का क्या होगा वो हम बताते हैं। ये 2 जो है ये देखिए जो ऊपर में रहता है ना वो आगे चल जाता है, ठीक है, एकदम अपर पार्ट में, और जो बीच में रहता है ना ये देखिए जैसे इसके ऊपर बेस के ऊपर ये 2 है ना, तो ये इसके नीचे चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 नीचे आ गया, 2 काटा 4 को 2 टाइम्स में, और हम लोग का log 2/2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इधर 2 था तो 2 into 1 हम लोग का आंसर आ गया 2, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर log 8/2 और log 16/4, ठीक है, तो log 8/2 का वैल्यू कितना मिला था 3, और log 16/4 का वैल्यू कितना मिला 2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम होप करते हैं कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, अगर कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं होपफुली जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है सॉल्व log x to the power 2 equals to 6, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर इन लोग ने बेस मेंशन नहीं किया है, पर यहाँ पे एक्चुअली देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन में बेस यहाँ पे नहीं दिया रहता कि इन लोग 10 यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, log x का आप लोग का बेस हो जाता और 2 हम लोग का यहाँ पे आर्गुमेंट हो जाता, फिर x इधर चल जाता तो x के पावर में 6 आ जाता। पर देखिए यहाँ पे इन लोग दिए हैं कि बेस में 10, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें वो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं, आप स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ये देखिए ये हम लोग का यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन है, अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये मेरा ही टाइप किया हुआ है और थोड़ा कंप्यूटर का यहाँ पर न्यूमेरिक्स का हेल्प लिया गया है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का सॉल्यूशन है जो कि नॉर्मली हम लोग जो एग्जाम में जैसे बनाएंगे। तो देखिए log 10 हम लोग यहाँ पे बेस में है और x हम लोग का आर्ग्यूमेंट में है और उसके पावर में क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पर हम लोग का आगे चल जाएगा, या हाँ सॉरी यहाँ पे 2 को हम लोग आगे नहीं भेज रहे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, हम लोग x स्क्वायर को डायरेक्टली वैल्यू में ले आते हैं और 10 को इस तरफ भेज देते हैं इक्वल्स टू के राइट साइड में भेज देते हैं, तो 6 ऊपर बेस में चल जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट में चल जाएगा या बोल सकते पावर में, सो x इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्क्वायर में था तो इसका वैल्यू इधर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा 6 कट के 2 से 3 बचेगा बस यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-1000। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट आप लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी सम के ऊपर तो याद रखिएगा कि वहां पे प्लस माइनस का वैल्यू लगाइएगा जब रूट वहां से हट जाए तो, ठीक है, क्योंकि रूट का हमेशा 2 वैल्यू होता है, प्लस और एक माइनस में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम में होता है, मैंने देखा है कि आपको वहां पर दे देता है 2 वैल्यू दे देता है, एक दे देगा +1000, एक दे देगा -1000, और एक थर्ड वैल्यू आपको देगा बोथ +1000 और -1000, और फिर डी आपको ऑप्शन दे देगा नन, तो आपको उसमें तीसरा वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई log बेस हम लोग का देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, बेस दोनों में यहाँ पर b सेम है, ठीक है, और ऊपर में जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो अलग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए log b और a है, ओके, यहाँ पे देखिए log देखिए यहाँ पे log b और b दोनों कॉमन है, ठीक है, ऊपर में a और c अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन करेंगे, ये थर्ड रूल था हम लोग का और लॉगरिथम का, जो कि स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि log a और c क्या हो जाएगा, a और c डिवीजन में आ जाएगा जब बीच में माइनस का साइन रहेगा और दोनों कॉमन रहे बेस, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन बढ़ते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, सॉल्व करना था।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। तो जो सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकेंड का टाइम है, या आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, x-1 इसके आर्ग्यूमेंट में है और इसके आर्ग्यूमेंट में x है, ठीक है। पर एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देखिए, जो आप यहाँ पर नॉर्मली नोटिस कर सकते हैं, वो है कि ये दोनों का बेस कॉमन है, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है। तो बीच में जब प्लस का साइन हुआ करता था, तो हम लोग लॉगरिदम को कौन सा प्रॉपर्टी लगाते थे? एडिशन प्रॉपर्टी लगाते थे, ठीक है। तो जब एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है और ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन में अब हम लोग वही करने वाले हैं। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन है, ये आपका हैंड बेस्ड सॉल्यूशन है। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, x और x-1 को, तो हम लोग को क्या यहाँ पर वैल्यू मिला? x² माइनस एक्स, ठीक है, बाई 10 इक्वल्स टू 1। तो 10 हम लोग को फिर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, x² माइनस एक्स, और x² माइनस एक्स 10 को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि साइन चेंज होगा माइनस में, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा? तो -10 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस वाले फॉर्मूला लगा के, ठीक है। हम जब जीरो के फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे इसका दो ठो प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर x वाला जो हम लोग यहाँ पे जीरो का फॉर्मूला ले रहे हैं, आप 8 या 9 क्लास में इसको पढ़ेंगे कि जीरो कैसे निकालते हैं। तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 40 रूट अंडर, तो ये d का फॉर्मूला है b² प्लस 4ac, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका निकलेगा, और आपका यहाँ पे इसका दो रूट आएगा, जैसे कि हम बताए थे, एक प्लस और एक माइनस, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस या माइनस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। हम्म तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इवेल्युएट करने को बोल रहा है वैल्यू को। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखिए, बेस में तो 2 हमको दिख रहा है लॉग का, और उसके आर्ग्यूमेंट में क्या दिख रहा है? उसके आर्ग्यूमेंट में एक और हम लोग को लॉग दिख रहा है, जो कि हम लोग उसके बेस में 3 है और उसके पावर में 81 है, ठीक है। तो जो सॉल्व कर सकते हैं, जिनको लग रहा है वो सॉल्व कर लेंगे, वीडियो स्टॉप करके वो सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक हेल्प हम यहाँ पे कर दे रहे हैं आप लोग को, कि आप लोग को जो भी सॉल्व कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प होगा। ये जो कि देखिए, जो log 3 और उसके पावर में 81 जो ये ऊपर में दिया हुआ है इसके आर्ग्यूमेंट में, इसको आप पहले अलग से सॉल्व कर लीजिए, और इसका जो भी वैल्यू आएगा फिर इसको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पुट कर लीजिएगा, आपका सम एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए इसको इस तरीके से करने का, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोग सब ये कर लिए होंगे सॉल्यूशन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग जब आएंगे, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग log 3, उसके पावर में क्या है 81, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, 3 का पावर 4 क्या होता है? 81 होता है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इस तरीके से लिख देंगे। अब आप लोग एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ये 4 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आगे आ जाएगा, और 3 का वैल्यू कितना? 1 हो जाता है, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, ठीक है। सो log 2/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब 2/4 जो हम लोग यहाँ पर ऊपर में 2 आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से इन्होंने सॉल्व कर दिया। पर यहाँ पर मैंने हैंड रिटन नोट्स में इसको थोड़ा डिफाइन करके सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर दिखाया है। आप इसको देख लीजिए, ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन बताया है, पर जिनको डिटेल में समझना है वो इसको देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में मेरा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछ रहा है, इफ log टू दी बेस 2 और उसके आर्ग्यूमेंट में x है, वो इक्वल्स टू 3 है, एंड log बेस 4 और उसके आर्ग्यूमेंट में y है, और उसका इक्वल्स टू में 5 वैल्यू दिया है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? log 2 टू दी पावर xy, ठीक है। तो जो सॉल्व कर सकते हैं वो ब्रेक लेके सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में बढ़ेंगे। 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास।
ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका दिया हुआ है कि हम लोग को, देखिए पहले दो चीज़ यहाँ पे देखिए, हम लोग को वैल्यू पहले ही दे दिया है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली बस सॉल्व करना चाहेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के ओरली, तो आप यहाँ पे बहुत आराम तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। log 2/x का वैल्यू 3 दे दिया, log 4/y का वैल्यू 5 दे दिया, और फाइंड क्या करने बोला, log 2 to the power xy। तो xy का वैल्यू निकाल लीजिए इस दोनों में से और इस पे पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। पर देखिए इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी मेथड है, ये जो स्क्रीन पे आप अभी मेथड देख रहे हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट मेथड से ही चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको शॉर्ट मेथड ही यूज करना है, आपके पास उतना टाइम है नहीं, ठीक है। जो लॉन्ग मेथड है उसमें आपका पावर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं log 4/y का इक्वल्स टू 5, इसका 1024 पावर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आपको, तो हम लोग एक शॉर्ट मेथड से इसको करेंगे। सो फ्रॉम log 2/x इक्वल्स टू 3, x हम लोग का 2 to the power 3 आ जाएगा, फॉर y log y/4, देखिए यहाँ पर y का पावर 4/5 आ गया। यही आप लोग का देखिए यहाँ पर 4 to the power 5 आ गया ना, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 4 to the power 5 का, 1024, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर 1024 आ जाता, तो अगर हम लोग यहाँ पर पावर में 1024 ले लेते और नीचे 2 रख देते, तो आप सोचिए इसको कितना हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता। तो इसको हम लोग यहाँ पे इजियर बनाने के लिए क्या करेंगे कि log 4/y को हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में log 2/y, और नीचे लिख देंगे log 2/4, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, पर इसका बेस हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो log 2/y by log 2/4, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा log 2/y, और log 2/4 एज इट इज आपको पता है कि क्या होगा, 2 to the power 2 आ जाएगा, 2 आगे चल जाएगा, log 2/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 into 1 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया नीचे वैल्यू में, ऊपर log 2/y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 2 into 5 10 आ गया, तो log 2/y का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। सो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखिए log 2xy log 2/x प्लस log 2/y, तो 3 + 10, 3 हम लोग यहाँ ऊपर ही में निकाल लिए थे जो सिंपल मेथड था उससे, तो 3 + 10 इक्वल्स टू 13, सॉल्व्ड। तो आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस सब में थोड़ा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन इसका बताया है अपने नोट्स में, ये थोड़ा बड़ा है, ये जो ऊपर वाला है मैं यहाँ तक आपको करके दिखा रहा हूँ, 8192 करके मेरा कुछ पावर आ जाता है यहाँ पे, इसको फिर और सॉल्व करना पड़ता, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा यहीं तक। आपको कैलकुलेशन बताने के लिए मैंने इतना किया था, नहीं तो मैं ये भी शॉर्ट ये मेथड ही यूज़ करूंगा अगर मुझे एग्जाम में ये पूछा गया तो। सो आप लोग ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आपका 3 + 10 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है सॉल्व log x + 1 माइनस log x इक्वल्स टू log 2, ठीक है। और देखिए मेंशन किया हुआ है कि बेस में क्या है, 10 है, ठीक है। दो यहाँ पर सबके बेस में 10 है, जैसे log 10 to the power x + 1 माइनस log 10 to the power x by log 10 to the power 2, ठीक है। ये सब चीज़ अपने नोट्स में आप मेंशन कीजिएगा कि कहाँ पे आपको बेस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो करना चाहते हैं बैक जाके स्टॉप करके अपना कर सकते हैं, और सॉल्यूशन पार्ट में फिर आ सकते हैं चेक कर दें कौन आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हुए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ वाले को सॉल्व पहले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको सॉल्व करना नहीं है। तो देखिए log x + 1, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, माइनस है ना, तो डिवीजन रूल लग रहा है, तो x + 1 by x आ जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पे बेस में हम लोग यहाँ पर इसको अज्यूम करके चलेंगे, और log 2 हम लोग यहाँ पे मिला हुआ है, तो देखिए x + 1 by x, ठीक है, और 2 यहाँ पर हो गया log का ये वैल्यू हटके, ठीक है। तो x + 1 और x हम लोग के यहाँ पे चल जाएगा 2 के पास, तो 2x आ जाएगा, उसका तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। और x क्योंकि हम लोग का 0 से बड़ा है तो वैलिड है, ठीक है। यही हम लोग का सिंपल इसका क्वेश्चन का ये हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया है इसको कैसे करना है, तो आप डिटेल नोट से देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो जो बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कीजिए, मैं 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। ठीक है,
तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको इसी सॉल्यूशन में बताऊंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लॉग क्या है, ये देखिए सिंपल लॉग है, पर ये क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर की जगह, ठीक है। तो इसको हम लोग को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा दोनों को प्लस करने के लिए। तो वो न्यूमरेटर में कैसे लाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हमने यहाँ पर एडिशनल प्रॉपर्टी में पढ़ना है। तो यहाँ, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको बाद में करेंगे, इसको अभी नेग्लेक्ट कीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्या दिया है, यूज आइडेंटिटी 1/log a। एक मिनट, हाँ देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दिया है, एग्जैक्ट यूज आइडेंटिटी 1/log ab इक्वल्स टू log ba। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये इनवर्स वाला आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ये हमको आपको पहले ही पढ़ाना था, पर ये मैं चाह रहा था कि आप क्वेश्चन में समझे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए log a हम लोग का बेस में है और b आर्ग्यूमेंट में है, ठीक है। तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो b आर्ग्यूमेंट है ये बेस बन जाएगा, जो a बेस है ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हम लोग का यहाँ पे, देखिए 3 हम लोग का यहाँ पे बेस में था, ये ऊपर जाके आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और 5 हम लोग का बेस बन जाएगा। तो 5 हम लोग का बेस बन गया, 3 आर्ग्यूमेंट बन गया, प्लस log 3/5। ओके, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को, ठीक है, 5/3 को हम लोग यहाँ पे u ले लेंगे, 3/5 को u ले रहे हैं, ठीक है। log 3/5 इक्वल्स टू u, ये हम लोग लेट कर रहे हैं सम को। तो देन सम क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू तो u हो जाएगा, और ये वाला जो सम होगा ये क्या हो जाएगा, +1u, ठीक है। सो न्यूमेरिक अप्रोक्स क्या हो गया हम लोग का, u इक्वल्स टू log 3/5 ln 5/3, जो कि वैल्यू 1.46497 आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है, तो एक मिनट, हाँ मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं, आप अगर इसको आगे करना चाहते हैं तो, बट मुझे नहीं लगता इसका आगे पूछा जाएगा, आपको यहीं तक सॉल्व करना रहेगा। ये देखिए आपको इतना ही तक सॉल्व करना है, यहाँ तक, ठीक है, यही आपको सिंप्लीफाई यहीं तक आपको करना है। बाद बाकी ये सब थोड़ा सा इतना सिंप्लीफाई करना नहीं, इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, आपको ऑप्शन यहीं तक दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि आपको पहले से दिख रहा होगा, log a/b डॉट log b/c प्लस log c/a इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कि आपका, जिसमें कि ये आता है लॉग वॉग का क्वेश्चन, उसके बाद इंजीनियरिंग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हर जगह ये क्वेश्चन नोटिस किया गया है। इसका पैटर्न मैंने हर जगह देखा, ये क्वेश्चन हर जगह आता है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो जो सॉल्व कर सकते हैं वो ट्राई करें, एक बार ट्राई करेंगे तो जब मैं बताऊंगा तो उन्हें अच्छे से समझ आएगा। 5 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो हम सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, ये सिंपली आइडेंटिटी प्रूफ वाला सॉल्यूशन इसका लगेगा। इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, 1 है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log ए बी डॉट log बी सी डॉट log सी ए, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला देखिए एल एन सी करके यहाँ पर है ना, देखिए लॉग ए बी, इसको हम लोग एल एन बी और एल एन ए लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं लॉग 10/b बाई लॉग 10/a, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो इन लोग एल एन ले रहे हैं, ठीक है। एल एन ही सही तरीका है, बट हम लोग लॉग भी ले लेते हैं। तो लॉग एल एन बी बाई एल एन ए डॉट एल एन सी बाई एल एन बी डॉट एल एन ए बाई एल एन सी। इससे क्या होगा, अब इधर ध्यान दीजिए, एल एन सी कट जाएगा, क्योंकि देखिए डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको याद रखिएगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। एल एन ए कट जाएगा, एल एन बी कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबका वैल्यू 1 आ गया, इस तरफ भी 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ्ड, ठीक है। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन, आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ पे देखिए 1 इक्वल्स टू 1 हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर मैंने लॉग लिया है, मुझे 10 मेंशन करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है, नहीं तो एल एन इसको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछ रहा है, सॉल्व log x इक्वल्स टू 1, ठीक है, बेस 10 है इसका। तो पहले तो हम लोग log x को सॉल्व करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में हमने किया था। तो जो सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, 5 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए log x जो है इसको हम लोग यहीं पे रहने देंगे,
ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बेस 10 दिया था ना, तो इसको बेस हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे पहले देखिए लॉग एक्स था इक्वल्स टू 1, लॉग एक्स को हम लोग इसी तरफ रहने देंगे, इन लोग यहाँ पे 10 नहीं दिखा रहे हैं पर नीचे में 10 लिख के तब 10 में इसको लाएंगे। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन, हाँ देखिए मेरे सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लॉग एक्स बाई 10 इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा है। ठीक है, और फिर 10 कहाँ पे चल गया, ऊपर में चल गया 1 के और उसका 1 पावर हो गया, सो 10 आ जाएगा उसका आंसर। और लॉग एक्स बाई 10 था, 10 फिर इसके ऊपर चल जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग 10 टू द पावर 10, मतलब 0 के पावर में 10 है, मतलब 10 जीरोस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व अगर हो गया होगा, मुझे लगता है आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसमें ट्रिक्स यूज हुआ है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और सब ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाया है वो सब पीवाईक्यू बेस्ड है और सब ट्रिकी क्वेश्चन टाइप्स है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इफ लॉग ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है और लॉग बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि आप सबका बेस क्या है, 10 है। अब यहाँ फाइंड क्या करना है वो चीज नोटिस कीजिए, फाइंड हम लोग को करना है लॉग ए स्क्वायर बी और उसके पावर में है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं 5 सेकंड बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं खुद का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो इधर देखिए ये थोड़े ब्लैक स्पॉट को थोड़ा ये निगलेक्ट कीजिएगा, ये थोड़ा शैडो आ गया था मुझे क्लिक करते टाइम फोटो। तो देखिए लॉग ए का वैल्यू कितना दिया था, 2 दिया था, और लॉग बी का वैल्यू कितना दिया था, 3 दिया था। ठीक है, और फाइंड करने क्या बोला, लॉग ए का स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर फाइंड करने बोला है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए ये जो ए स्क्वायर बी है और जो ए बी स्क्वायर है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बी स्क्वायर और लॉग ए स्क्वायर बी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। ठीक है, बेस हम लोग का 10 रहेगा जो कि हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों कॉमन है। ओह सॉरी, इसके आगे का सॉल्यूशन मैं अपलोड करना भूल गया। तो हम लोग फिर इसी इसी न्यूमरिक कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए लॉग यहाँ पे सेम है, यहाँ तक तो यहाँ वाला सेम है। ठीक है, बेस 10 इन्होंने मेंशन किया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को लॉग ए का वैल्यू दिया हुआ है, लॉग बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो लॉग ए बी स्क्वायर को इसके वैल्यू में तोड़ेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू जो हम लोग तोड़ सकते हैं। तो लॉग ए बी स्क्वायर था तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कब होता था, जब बीच में ऐड लगता था। तो क्या हम लोग जो सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ आने में यूज करते थे, यहाँ से यहाँ जाने में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो लॉग ए प्लस 2 लॉग बी, हम लोग यहाँ पर देखिए लॉग ए का वैल्यू कितना था 2 और 2 लॉग बी का वैल्यू कितना था 3। ठीक है, और 2 यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 8 आ गया। सेम हम लोग ए स्क्वायर बी में भी करेंगे, 2 लॉग ए प्लस लॉग बी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो 8 प्लस 7 15 हो जाएगा आपका। नहीं सॉरी, यहाँ पे ऐड नहीं करना था ना आपको, यहाँ पर इसको प्रेजेंट करना था लॉग ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी उसमें पोस्टेड है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि log 2 टू द पावर x प्लस log 2 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए, मैं 5 सेकंड्स पास इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्मूलाज लगा के, कोई इसमें ट्रिक है नहीं। तो
हाँ देखिए, लॉग टू टू दी पावर क्या है हम लोग का, देखिए बीच में प्लस है तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, तो एक्स एक्स माइनस टू यहाँ पर हम लोग को होगा, और थ्री हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा, ठीक है। और इसके इधर वैल्यू तो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे थ्री था ना, लॉग को हम लोग हटाएंगे तो टू इस तरफ जाएगा, तो टू के पावर में थ्री आ गया, वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इधर का जो 8 था उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इक्वल्स टू का, तो वो माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस फोर, ये हम लोग का जीरोज आ गया इसका, x माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, पॉसिबल x इक्वल्स टू फोर, और क्या एक आएगा x इक्वल्स टू माइनस टू। अब देखिए डोमेन रिक्वायर्स हम लोग को यहाँ पर x को पॉजिटिव रखना है, तो x हम लोग का x इज ग्रेटर देन टू बिकॉज x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो वैलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू फोर। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे कंप्यूटर ने किया है, ये स्मॉलर है, ठीक है। हाँ x यहाँ पर बिगर है टू से, और x यहाँ पे स्मॉलर या इक्वल बोल सकते हैं फोर से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल है, एक्चुअली सिंपल नहीं है, एक प्रूविंग सम है। आपको प्रूविंग तो नहीं आता है एग्जाम में, पर मैं यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि आप ये आइडेंटिटी सीख पाए, क्योंकि पिछले 3-4 क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज हो चुका है, और बहुत सारे PYQ में भी ये आइडेंटिटी यूज होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि लॉग बी जो होता है जब इन्वर्स में रहता है, लॉग बी बाई ए जब इन्वर्स में रहता है, तो उसको जब हम लोग वापस लाएंगे तो वो लॉग ए बाई बी में हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। तो 5 सेकंड है आपके पास, सॉल्यूशन इसका आप सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पार्ट पे पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए लॉग बी बाई ए नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, तो log b बाई ए एल एन ए और एल एन बी होगा, या log 10 बाई ए और log 10 बाई बी लिख सकते हैं, एल एन ए और एल एन बी को। अब देखिए इसी को फिर log a बाई बी को भी करेंगे इसी तरीके से, एल एन बी बाई एल एन ए, और इसका देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट करके तो नहीं दिखाए हैं, मैंने किया है कि नहीं, हाँ मैंने किया है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को किया है, तो log a और log b, ठीक है, और log b और log a सबके बेस में 10 है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब इन सबको काटेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि इसका वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो इससे हम लोग का ये सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ेंगे, जो कि हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग से यहाँ पे पूछ रहा है कि log x का नहीं पूछ नहीं रहा, ये हम लोग को दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है। log x इक्वल्स टू p है, ठीक है, log y इक्वल्स टू q है, log z इक्वल्स टू r है, और सबका बेस क्या है 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये देखिए आप पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन बना चुके हैं, वो बस न्यूमेरिक वैल्यू यूज करता था, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू यूज हुआ है, ठीक है। तो x का यहाँ पर क्या है, पावर स्क्वायर, y का पावर क्यूब है, z का पावर 5 है, इन टर्म्स ऑफ p q r आपको इसका सम सॉल्व करना है, ठीक है। जो सॉल्व कर सकते हैं एक बार ट्राई कीजिए, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे आपको। 5 सेकेंड्स है आपके पास। ठीक है, चलिए अब इसके सॉल्यूशन पार्ट में बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए log x स्क्वायर जो है उसको यहाँ पे अलग करेंगे, log y क्यूब का अलग करेंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे z5 नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको ऊपर में लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए log z5 को डायरेक्टली लिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइन चेंज किए हैं, तो ये कैसे हुआ है, ठीक है। आप पूछ रहे होंगे ये कैसे हुआ, ऊपर कैसे आया, माइनस साइन कैसे आया। तो अगर आप पहले ये पढ़े होंगे कि प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, कि जब प्लस अगर समझ लीजिए कि आपका 10 टू द पावर माइनस 3 है नीचे में, ठीक है, पावर का, तो वो जब ऊपर जाता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, तो उसका पावर चेंज होके पॉजिटिव या जो भी रहता है उसका, उसमें आप बोल सकते हैं कि चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ पे उसके आगे वाले साइन के साथ कर दिए, तो ये माइनस आ गया इस तरफ, log z टू द पावर 5। अब सबका वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ था, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो देखिए 2 यहाँ पे आगे हम लोग भेज देंगे log x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, दिया हुआ है बेस 10 है, ठीक है, मेंशन नहीं करे बेस 10 है, पर यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन में ऊपर है, x के पावर के x यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, और
उसके पावर में 2 है, ठीक है, और बेस 10 है, तो 2 हम लोग आगे आ जाएगा 2 log x प्लस 3 log y माइनस 5 log z, ठीक है। और 2 log x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, log x का वैल्यू p था तो 2 log x का वैल्यू 2p हो जाएगा, ऐसे ही करके प्लस 3q माइनस 5r, यही सॉल्यूशन इसका होगा। तो ठीक है, होपफुली आपका यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में या इसके डिस्क्रिप्शन में भी। और जितने भी पॉसिबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा मुझसे मिलने का या आपका जो भी पर्सनल कमेंट्स होगा उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं यूजली एक्टिव रहता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में मैं ऐसा 2 वीडियो पोस्ट कर सकूं। सो ठीक है, होपफुली आप सबका दिन अच्छा रहे। बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.